It has been a great fortunate day for us today. आज हम एक साथ विश्व पुस्तक दिवस और शेक्सपियर दिवस मना रहे हैं। अब ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि एक पर्सन जिनके लाइफ में सिर्फ बुक्स और बुक्स से रिलेटेड इम्पैक्ट रहा, उनके ही दिन पे आज यूनेस्को ने हमें वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट करने के लिए भी प्रेरित किया है। तो शेक्सपियर डे एंड बुक डे, व्हाई डू वी सेलिब्रेट बुक डे एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेक्सपियर डे, सेलिब्रेटिंग शेक्सपियर डे? April 23rd is a symbolic day because on this day UNESCO General Conference was held in Paris in 1995 to pay a worldwide tribute to the books and authors and encouraging everyone to access books. This year theme of World Book Day is Read Your Way. What do you mean by reading your way? Read for life's upliftment, read for pleasure, read to live to your highest potential. I'll take few names in front of you, my dear students, and I hope you must be knowing all of them. What do we want from our life? If in one sentence I'll ask you, what would be the answer? What would be the answer? Success? Right or wrong? Is anybody here in the hall who doesn't want to be successful? No. I hope everyone wants to be successful, right? Now, how many of you know the names of Steve Jobs, Elon Musk? Yeah, Bill Gates? Yes, these people are known to you. Why they are known to you? Because they are successful, they are rich, they are affluent people, right? So what had made them successful? You know that? Elon Musk reads book 3 hours per day, and that is globally acknowledged. You can do Google and you can find it out. If a person who is already so much successful, what is the need for him to read books for 3 hours daily? You can understand. Books give you life. Now I would request our respected principal sir to be here on dais and please please address the session and tell students about his experiences of books and the transformative practices that book has produced for him. Thank you, sir. Please. Good afternoon to all of you present over here in this Swami Vivekananda Conference Hall. On that is Dr. Geeta Sinha, Associate Professor, Department of Chemistry, as well as Coordinator at QSC of this college. Head of the Department, Dr. Andra Kumari, Economics, as well as he is also leading several committees of the college. He is working in the college for its upliftment. Also sitting here in the hall, Dr. Ashok Kumar Rawani, Head Department of Commerce, Purser, Expenditure, in charge admission. Then he is also heading so many committees of the college and working hard for the progress and development of this college. Also sitting over here in the hall, Dr. Prabhat Kumar Singh, ex-registrar of Women's Jamshedpur Women's University, Department of Statistics Head, and he is also involved as a member, somewhere member secretary, coordinator of the different committees have been constituted for the development of progress of this college. Also, Savita Paul, Dr. Savita Paul, Dr. Pushpa Tiwari, and none other than the announcer who has organized all these events, Dr. Ruchika Tiwari of the English department, then
uh, Priyanka Singh, then the department teacher or Dr. Ramesh, likely to become doctor. And I think UG and PG both students are sitting over here. On today's occasion, we are celebrating. Uh, it is a kind of commemoration of whenever UNESCO announces everything, we start celebrating that day across the globe. I think, unless and until it is not announced by UNESCO, we have found it seldom that we can celebrate. Anyway, uh, few minutes before only, Dr. Anushka Tiwari was telling you why we have gathered over here to celebrate this. The importance of books is not unknown. So, was uttering the name of Bill Gates and Elon Musk. मैं भी जब एमएससी तक विद्यार्थी था तो रेगुलरली आई यूज्ड टू मतलब किताबों का मैं समझिए साहित्यिक किताबों का लिटरेरी किताबों का written by several workers writers Premchand, Shivani, Priyamkusha Premada, then Nirala, सब किताबें मैं पढ़ता था. And really, I'm telling you honestly that if you will really go through the books, there are so many things to learn from the books. They will change you from your soul. The mind will be overwhelmed. And you will really find a new world. You will make a friendship with the books. लेकिन आजकल क्या है बच्चों का पढ़ने की आदत कम हो गई है. कॉलेज ही नहीं आते. कॉलेज जाने के लिए आज एक लड़का आया था एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने तो मैंने बोला तुम्हारे हेड का नाम बता दो. कोई भर लिखा था समझ गया. बहुत सोचा बोले बहुत ज्यादा दिमाग में जोर मत दो नशे फट जाएंगे. बहुत मेहनत का काम है ये हेड का नाम जानना. तो बोला सर हम नौकरी करते हैं. तुम्हारे लिए तो यूनो है क्यों नहीं यूनो में एडमिशन लेते हो. आवेदन भी उसी स्टैंडर्ड का लिखा हुआ है. हम इंग्लिश और हिंदी के शिक्षकों से भी अनुरोध में करता रहता हूँ. At least teach your students of Hindi as well as English how to write an application correctly, correct and to the point words. वो बड़ा एक कला है. आपने लिखिएगा तो उसी से you know whenever you visit an office, go to any office, you go before any officer, give to them any material in writing. So the first instance, the officer or the office makes an impression on you is your write-ups. और वो write-ups कहाँ से आता है जो किताबों को पढ़ेंगे क्योंकि अब पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं तो reading, visiting this college, attending your classes regularly, and then learn the etiquettes and manners, how to speak, how to make your body posture while addressing a mob, while addressing a gathering, before standing any kind of audience or target group of teachers. तो आपको पता होना चाहिए कि आप और वो सारी चीजें आप जब खूब पढ़ेंगे तभी. मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है वो बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं लेकिन ऐसा करने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है. You have to be exceptionally alert about your health also. क्योंकि आप खूब पढ़ने लिखने में बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है. IAS का रिजल्ट भी आया. Many of the students of this city and the adjoining areas they have also cleared that most coveted central services examination. उन्होंने उसको क्वालिफाई किया है. But simply qualifying and occupying a position as a civil servant is not enough for anybody's life to become successful.
as Dr. Ruchika Tiwari was also uttering repeatedly the word successful. Meaning of success uh, is very vast and enormous. तो आप बहुत कमा लेते हैं, बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पर चले जाते हैं, उससे ही आप सक्सेसफुल हो गए या आइडेंटिफाई नहीं होता है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। बहुत ऊंचे पद पर अभी आपने देखा होगा पेपर में डीजीपी साहब को उनकी पत्नी ने ही आंख में मिर्च डाल करके थोड़ा थोड़ा मार करके मार दिया, देखा सुना है। सो हाउ इज योर फैमिली लाइफ, हाउ यू आर रनिंग, आपके अगल बगल के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, what kind of person you are, what people are having opinion about you. All the persons in circling may not be having a very good idea about it, because it is very difficult to make everybody happy. Whosoever is present around you, सबको खुश करना संभव नहीं, बिकॉज आप जैसा सोचते हैं उसी लेवल से सारे लोग नहीं सोचते हैं। हो सकता है आप ही गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दैट थिंग हैज टू बी वेरी ऑनेस्टली शुड बी एक्सेप्टेड कि देयर मे बी सम फॉल्ट इन मी और एज वेल, ऐसा करना है। तो किताबों को पढ़ने से जीवन आपका बदल जाएगा। आप कितनी कैपेसिटी है आपको किताबों को पढ़ने की, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हो, अपने जिंदगी में एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हो, आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट लाइन्स को, जैसे हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। ये किताब जब मेरे हाथ लगी तो डॉक्टर का नाम भूल रहा हूँ, रोबिन शर्मा, they has written a series of books in that way. और मेरे पास उनकी लिखी हुई रोबिन शर्मा की एक उनकी किताब थी The Monk Who Sold His Pride. So many books I went through written by Robin Sharma. बहुत सिंपल इंग्लिश लिखा हुआ है, बहुत कुछ कठिन इंग्लिश में किताबें नहीं है, लेकिन the topic, the title of the book, Who Will Cry When You Will Die, और उसके अंदर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। Who will really change your mind. कोई भी आदमी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कभी भी उसका टेलीफोन उठा लीजिए, कभी भी किसी जगह आप बैठे हुए हो, बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम, अभी हम लोग की आदत देखती है, ऐसे बात करेंगे तो नहीं बोलेगा, लेकिन फोन आएगा तो ऐसा बोलेगा, बाहर निकलेगा फोन लेके रूम से बाहर, जैसे लगता है कि मोदी जी फोन किए। आपने ऐसा देखा है? एकदम छोटा सा कोई आदमी, उसका कोई फ्रेंड जो रोज उससे बात होती है घंटों, अगर उसका रिंग फोन बजा तो ऐसे वो अटेंटिव नहीं दिखेगा, पर फोन बजा तो बस वो लिया सीधे रूम से बाहर, तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ टाइप का सीआरपी का फोन है या बहुत इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट मैटर पर बात है। तो वो सारी चीजें रोबिन शर्मा उस किताब में लिखते हैं। शेक्सपियर ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और शेक्सपियर की कई जो विशेषकर उसके नाटक जो प्लेज को हम लोगों ने पढ़ा है, जूलियस सीजर है, ओथेलो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द फेमस, ये तमाम चीजों को बचपन में हमने पढ़ा है। तो इसीलिए सेलिब्रेट इंटरनेशनल बुक डे या शेक्सपियर का जैसा मैंने बताया, जैसे औरतें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं करना चाहिए, पता नहीं शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, 25 साल वो पैदा दिए थे, लेकिन 23 अप्रैल उनको किसी तरह से पता था, उसी दिन जन्म भी लिया, उसी दिन उनका डिमाइस भी हुआ, तो इसीलिए 23 अप्रैल को इंटरनेशनल बुक डे के दिन इनका भी पड़ता है। ये तो डेफिनेट है, देयर इज नो नीड टू go on deliberating a long lecture on what are the various importance and significance of reading books. Books can really change your life, provided आप कम ही पढ़। कुछ लोगों को देखते हैं कि जैसे फ्लाइट में पढ़ते हुए देखते हैं कि फ्लाइट में बैठे हुए तो लेकर अपना पढ़ रहे हैं, और उनको है कि सबसे बढ़िया समय फ्लाइट में मिला हुआ है,
कहीं से डिस्टर्बेंस नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 1.5 घंटे 2 घंटे का अगर यहाँ से दिल्ली जाने में लगता है, रांची से दिल्ली, तो 2 घंटे में मैक्सिमम किताब का पोर्शन पढ़ लेते हैं। बट आप अपने घर पर भी कोई अच्छी किताब, बहुत सारी किताबें आजकल गूगल आप खोलिएगा तो बहुत सारी प्रेमचंद की ऐसी किताबें जो आपकी लाइफ को बदल देती। ये बात जरूर है कि वो ग्रामीण परिवेश में जो भी उनके पात्र विशेषकर ग्रामीण परिवेशों के होते हैं, और गांव में रहने वाले जो परिवार हैं उनके सदस्यों के बीच या आसपास के पड़ोसी, चाहे उसका वो पंच परमेश्वर पढ़ लें, छोटी सी कहानी जिसमें दोनों अर्पी चौधरी और एक और पात्र होता है जुमन शेख और अर्पी चौधरी, दोनों दोस्त रहते हैं, बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है, उनकी दुश्मनी हो जाती है। लेकिन बैल की चोरी को लेकर के जब जुमन शेख कोई पंच गांव बढ़ा देता है, तो अर्पी चौधरी के दिल में ये है कि एक जमाने जब दोस्त दुश्मन बनता है तो बहुत खतरनाक दुश्मन बनता है। ये कहावत भी है, क्योंकि पत्थर तो वैसे हजारों ने मारे थे, लेकिन जो दिल पे आके लगता है वो किसी दोस्त ने मारा। तो इसीलिए आपका वो सारा इन्स एंड आउट्स जानता है। इसलिए कई बार बुद्धिमान लोग कहते हैं डोंट शेयर ऑल द सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ विद हिम। लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं कि अपने दिल को उड़ेल देते हैं। कई बार सामने बैठा हुआ आदमी, उसको लगता है कि ये मेरा बहुत करीबी है, ये मेरा वास्तविक दोस्त है। और जीवन के तमाम जो संबंध होते हैं, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, गर्लफ्रेंड का हो, कहीं न कहीं बुक्स में आपको मिल जाएगा, और वो पात्र बहुत कुछ कहते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सच भी कहेंगे, झूठ भी कहेंगे, आपको उसको थोड़ा सा शिव लगा करके उसको कंसीव करना है, रिसीव करना है, और तब आपका वास्तविक जीवन बदल जाएगा। और इसीलिए हमने कहा कि रख दीजिए बच्चों को दिमाग में कम से कम आए, पता नहीं किस क्षण किस बच्चे के दिमाग में कौन सा कंसेप्ट से उसका जीवन बदल जाए, उसका सोचने समझने की क्षमता बदल जाए, किताब पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते अपनी कोर्स की किताबों को पढ़ने की उसकी ज्यादा से ज्यादा हैबिट बन जाए। क्योंकि आप अपने कोर्स की किताबों को भी बार बार चैप्टर्स को पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, ओनली दैट हैबिट मेक्स यू परफेक्ट एज एन एग्जामिनर और फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम्स इवन ऑफ योर लाइफ ऑफ एजुकेशन। लेकिन आप वो नहीं करेंगे तो कुछ भी ऐसे आते जाते रहेंगे, निकल जाएंगे। बहुत सारे लड़के तो आप देखते हैं कि रेगुलर आते ही नहीं। To say to this, most of these students, they are not regular at their classes. I may be wrong. My perception may be wrong. But what I have realized कि अभी इधर 2-4-10 सालों से ये हैबिट डेवलप करने के, हम लोग का जमाना होता था, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मतलब कहने के बाद मेरे जमाने में हम लोग की होड़ लगी रहती थी कि आगे के 5 बेंचेस में कौन पहले क्लासेस, एक ही क्लासेस में रूम में सब क्लासेस नहीं होते थे, तो टीचर भी मेहनत करके आते थे, पढ़ाते थे, और टॉपिक्स में वो टीचर बड़ी ऑनेस्टली अपने दिल को उड़ेल देते थे। और इसीलिए जो भी बच्चे उस चैप्टर्स को पढ़ते थे, नॉट ऑल द टीचर बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स, दे यूज्ड टू कम वेल प्रिपेयर्ड इन देयर टॉपिक्स। और वो इसीलिए आप ट्यूशन पढ़ लें, कोचिंग में पढ़ लें, लेकिन जो क्लासरूम की पढ़ाई होती थी वो हम लोग बहुत लाइक करते थे। धीरे धीरे ये जो आदतें और परंपरा बच्चों में कम होती गई। गार्जियन भी नहीं पूछते बच्चा कहाँ गया, बच्ची कहाँ गई, पढ़ के आ रही है नहीं आ रही है। गार्जियन को वाचफुल रहना चाहिए कि मेरा बच्चा या बच्ची कहाँ जाती है। NEP 2020 में भी है कि पेरेंट्स मीट होना चाहिए। पिछले दिनों कॉमर्स में मैंने देखा कि बच्चों का पूरा हुजूम खड़ा हो गया। पेरेंट्स डे क्यों मना रहे, पेरेंट्स इंटरेक्शन क्यों हो रहा है। मेरे माँ बाप मेरे कभी को जान जाएंगे, चले थे कल ब्यूटी पार्क में बैठ करके गोलगप्पा खाने, बट वो NEP 2020 में है। There has to be a regular system arranged between the teachers and their parents, so that the teachers could know why the students are not turning up regularly in their classes,
and their parent should be they should be informed कि आपके बच्चे नहीं आते। तो अंत में मैं बहुत लंबा नहीं, बहुत सारा ऑफिशियल वर्क की है। One day national seminar is going to be held, must be going on 28, and the students should also get themselves enrolled or registered for that one day national seminar on biodiversity. Jai. Biodiversity is all which is supposed to be known by all the students, all the teachers, and everybody. क्योंकि जैव विविधता पर लगातार खतरे मंडरा रहे हैं, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, and fortunately or unfortunately, I am the chief speaker on that topic, biodiversity. I am also preparing for that since last 2-3 days. So I will also prepare a PPT presented before the audience, and the audience they will be sitting in this seminar conference hall only. So I will rather suggest and request all of you to get yourself, because seats are limited. Only this room can accommodate not more than 130 persons, and top officials of forest departments they are visiting. Principal Chief Conservator of Forest is also coming from Ranchi. Then the Regional Chief Conservator Smita Pankaj will also be sitting. The DO from Jamshedpur, Dr. Sawa Ahmad Ansari will also be there. And we have also requested our Honorable Chancellor, Professor Dr. Rajila Gupta ji, to bless the occasion and chief guest of that function. So, hurry up. Seat is limited. Not all of you can get yourself registered for that national multinational seminar. It's a very important topic is there. We will be discussed. We told you, और आपके कोर्सेज में भी एनवायरमेंट के बारे में है। तो 2-3 स्पीकर हैं। BCCF will also be deliberating on the economic values of the plants which are on the different forests of Jharkhand. और मेरा टॉपिक जनरलाइज बायोडाइवर्सिटी विविधता पर रहेगा, how the climate is changing because of the loss of biodiversity. I will try to establish before the audience. सभी को बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहिए, उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और all of you must develop the habit of reading books at least, if not for 2, 3, 4 hours, but then at least for 1 hour. In addition to your books, which are of your syllabus. Some good writers, कभी कहीं किताब पढ़ लीजिए और उसके जो इम्पोर्टेंट बातें आपको लगती है उसको अपने डायरी रखिए, उस डायरी में नोट डाउन कीजिए। If you really want to evolve as a good human being, as a good person, then you are supposed to collect some good features, characteristics in your life and get yourself established to be followed by you genuinely. Then you will really see that your personality will become changed in due course of time. With these brief deliberations, मैं सजेस्ट करूंगा सारे अपने स्टूडेंट्स को कि आप बुक्स खरीदिए। एक छोटी सी लाइब्रेरी आपके घर में होनी चाहिए और मोबाइल से दूरी बनाते हुए बुक्स पर ध्यान दीजिए, किताबों को पढ़िए। और जो भी शेक्सपियर को भी याद कीजिए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें, मर्चेंट ऑफ वेनिस अब पढ़ी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक आदमी जब कर्ज लेता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और जब वो जज के सामने जाता है, रिफ्यूज करता है, नहीं करता है, कर्ज लेकर के अपने दोस्त को नहीं उधार लेता है ऐसी कहानी मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, बहुत सारी चीजें। तब उससे कलेजे से कुछ मांस का टुकड़ा मांगता है जब कि वही दे दो थोड़ा सा, तो बराबर तो दे देंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। वो उसको कोरिलेट करता है जज कैसे कि तुमने लिया था कर्ज, वो
शायद उसका सबूत नहीं दे रहा था या झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ उसको याद दिलाता है। वो मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वेरी रियली एवन जूलियस सीजर ने also written by शेक्सपियर। ब्रूटस भी है उसमें, एक ब्रूटस एक उसमें पात्र है जो खलनायक है सर। ब्रूटस ये विलेन और वो जूलियस सीजर उसको अपना बहुत, मैं बोल रहा था कि बहुत सारे आपको लगता है कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है और उससे सारी बातें आप शेयर करते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि वो ही मेरा ओपोनेंट हो गया, विरोधी हो गया, लेकिन चूंकि आपने सब सारी चीजें उससे शेयर की हैं तो ही कैन बी वेरी रियल एनिमी ऑफ यूज। तो वो हो जाएगा, आपके सारी चीजों को जानता है तो आपके लिए वो एक रियल थ्रेट हो जाता है। तो ब्रूटस भी बहुत क्लोज फ्रेंड रहता है जूलियस राजा किंग सीजर का। किंग सीजर किंग और उसको प्लान करता है सब उसको मारने के लिए, और पीछे से जो छुड़ा मारता है वो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड ब्रूटस होता है। और वो पलट के देखता है किंग सीजर, तो वो एक लाइन बोलता है, दैट लाइन हैज बिकम यू टू ब्रूटस, माने आप भी मेरे दुश्मनों को एक ग्रुप में ही थे, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन सारा उस किंग सीजर का सीक्रेट्स को अब उसके दुश्मनों से ब्रूटस ही शेयर करता है। तो आपको उस किताब से ये लगेगा कि जीवन में बहुत को शेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों को शेयर नहीं करना चाहिए। तो हर किताब में आपको कुछ न कुछ सिखा जाएंगे, बशर्ते कि $1000 क्वेश्चन इज यू विल डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स, sparing your valuable time in peeping into the books, going through the lines of the books, and noting down the important lines and inculcations which has been written in the different lines of those books in your diary, and repeating those lines written by you, some important lines of some of the books which you have written while going through those books. कभी-कभी आप उसको रिपीट करके फुर्सत के समय में पढ़ेंगे, but all these will become possible only then when you will develop the habit of developing yourself as a good leader. थैंक यू रुचिका। आज आप लोगों को किताबों के साथ मेरा सफर कैसा रहा है उसके बारे में कुछ बताऊंगी। नो लेक्चर्स एंड नो एडवाइसेस, जस्ट अ जर्नी जो मैंने खुद जी है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है अपने कविता में ऑल द वर्ल्ड स्टेज में कि हम यहाँ पर सिर्फ अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं, और उन्होंने 7 स्टेजेस की बात की है अपनी कविता में। बचपन से ही हमें अक्षर बोध और बाकी सारी चीजों के बारे में बताने वाला कोई किताब नहीं होता है। हमारी माँ होती है जो चलता फिरता एक किताब होती है। सो पहला ट्रिब्यूट उनको, क्योंकि उनके पास जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डेटा होता है वो शायद एक किताब में नहीं मिलेगा। उसमें उनके जीवन भर का निचोड़ होता है, जो कुछ उन्होंने अपने लाइफ में सीखा। तो मेरी पहली किताब जो कुछ मैंने माँ से सीखा। थैंकफुली मेरे स्कूल में प्राइमरी सेक्शन से ही लाइब्रेरी पीरियड हुआ करता था। सप्ताह में एक दिन लाइब्रेरी पीरियड, जिसका हम बहुत इंतजार करते थे। हमारे क्लासरूम में ही कबर्ड में बहुत सारे बुक्स होते थे। एक सप्ताह के लिए वो किताबें हमें दी जाती थी। एक सप्ताह बाद हमको उसको वापस करना होता था, और कुछ बच्चों को मैम पूछती थी कि आप लोग बताइए कि उस किताब से आपने क्या सीखा। मतलब जिस तरह आप बाकी होमवर्क करते हैं स्कूल में, उस तरह उस किताब को पढ़ना भी हमारा होमवर्क था, बिकॉज किसी को भी पूछा जा सकता था। तभी हमें समझ में नहीं आता था कि इसको पढ़ के क्या होगा, ये कौन सा हिस्ट्री ज्योग्राफी है, कौन सा इससे हमको कुछ मिलने वाला है। लेकिन वहां से हमारे किताबों का सफर शुरू हुआ। क्लास 8 तक लाइब्रेरी पीरियड चला, और मुझे लगता है कि 3-4 साल में ही लाइब्रेरी की सारी किताबें हम लोगों ने पढ़ डाली थी। अब हमारे बीच में ये होड़ होती थी कि कौन सी किताब तुम नहीं पढ़े हो। ठीक है, उस समय जिस समय स्कूल डेज होता था, हम लोगों ने अपना सफर शुरू किया फेमस 5, सीक्रेट 7,
और इस तरह की किताबें हम पढ़ते थे, छोटे मोटे शॉर्ट स्टोरीज, वहां से शुरुआत हुई। फिर मुझे याद है कि 7th या 6th या 7th क्लास में थी, तो हिंदी में मुझे बहुत खराब मार्क्स आया था। तो घर में सभी ने कहा हिंदी किताबें पढ़ना शुरू कर, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से कुछ नहीं होगा। खास करके सबसे बड़ा कंसर्न मेरी दादी का था, खाली अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, हिंदी भी पढ़ो। तो उस बार गर्मी छुट्टी में मुझे ढेर सारी हिंदी की किताबें दी गई, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का हिंदी रूपांतरण, प्रेमचंद की छोटे छोटे कहानियां और ये सारे चीज थे। सच पूछिए तो उस समय ये सब कुछ सिर्फ एक कहानी के तौर पे ही पढ़ते थे, इससे ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते थे, इंजॉय करते थे। हाँ ठीक है, पढ़ना हमारा हैबिट बन गया। आज आप लोगों के पास बहुत कुछ है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हम लोग के पास गर्मी की छुट्टियों में किताबें पढ़ना एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था, क्योंकि दिन भर कड़े दोपहर में आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शाम को हम बहुत खेलते थे, पर दिन में किताबें पढ़ते थे। तो यहाँ से शुरू हुआ। जब थोड़े बड़े हुए, टीनेजर हुए, तो फिर हर तरह की किताबें पढ़ी, इंक्लूडिंग मिल्स एंड बूक्स आल्सो। तो वो सारी किताबें भी हमने पढ़ी, डैनियल स्टील में पढ़ी, बहुत कुछ इस तरह से। लेकिन इन सब चीजों से एक चीज हमने देखा, जो एक चीज डेवलप किया कि रीडिंग हमें अच्छा लगने लगा। अब ये हमारा जो बचपन से लेकर के अप टू जब हम कॉलेज किए, ये हमारा सफर था जब हम किताबें पढ़ते थे एज एन एंटरटेनमेंट, कुछ सीखते थे। उसके बाद जब थोड़ी अक्ल आई तो हम उस पर सोचना शुरू किए। जब हम पढ़ाने लगे तो हम चीजों को रिलेट करना शुरू किए। तब जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते थे, तब हमें याद आता था कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में किस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो दुष्प्रभाव था वो देखने को मिलता था। जब हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट पढ़ते थे, तब हमें याद आता था कि किस तरह थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में, टेस ऑफ द डर्बरविल्स में हम लोगों ने वो सब देखा था, उसका एक चित्रण देखा था। जब हमने और उस पर विस्तार से सोचना शुरू किया तो हमें पता चला कि बंगाल में जितनी भी कुरीतियां थी, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह के लिए आंदोलन हो, चाहे वो सामंतवाद हो, और चाहे वो कास्टिज्म, अब जो ऊंची जाति वाले लोग जो जिस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, इन सभी चीजों का चित्रण आपको मिल जाएगा इन सारे लेखकों की किताब में। तो समझ में आया कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये समाज का दर्पण है। क्या हो रहा है उस समय, वो सब कुछ उन कहानियों में देखने को मिलता है। और तब हमने सोचा कि इन सारी कहानियों का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो है, ये कहानियां ऐसे ही नहीं आई है। आज से 20 साल बाद अगर आप चेतन भगत का पहला नॉवल वन नाइट एट द कॉल सेंटर पढ़ेंगे, तो कम से कम आप ये तो कहेंगे कि हाँ, जिस समय ये नॉवल आया था उस समय बीपीओ इंडस्ट्री इंडिया में आ चुका था। तो ये ज्ञान आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन मिलेगा किताबों में। सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती तो है ही, लेकिन अगर जिंदगी में आप एक अच्छे ओरेटर बनना चाहते हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं अच्छे शब्दों में, तो किताबें बहुत हेल्प करती हैं। बिकॉज कई सारा नॉलेज है जो दिन पर दिन, ईयर्स आफ्टर ईयर्स जमा होता है, वो एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। क्योंकि आप जब इन सब बातों को हम लौट करके देखते हैं, वो बचपन के छोटे छोटे चीज जब हम याद करते हैं, तब हमको लगता है कि अगर किसी भी विषय पर 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, तो ये जो सालों का जो सारगर्भित जो नॉलेज हमको मिला है, शायद उसी के कारण कुछ कह पाते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज मैंने सोचा कि मेरी फेवरेट किताब कौन सी है जिस पे मैं विशेष कुछ कहूँ, तो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि हर कहानियां जो दिल को छू जाती है वो आपकी फेवरेट तो होती ही है।
आज इस दिवस पे जब आप वर्ल्ड बुक्स डे भी मना रहे हैं और शेक्सपियर डे भी मना रहे हैं, तो शेक्सपियर के साथ मेरा जो विशेष लगाव रहा है उस पे दो शब्द कह के मैं खत्म करना चाहूंगी। हम लोगों ने शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया था क्लास 8 में, जिसमें से सिर्फ 4 वन एक्ट प्लेस था जो हमारे सिलेबस में था, लेकिन जो एब्रिज्ड वर्जन की किताब हमें मिली थी उसमें कम से कम 15-20 प्लेस, ऑलमोस्ट शेक्सपियर के सारे प्लेस उसमें थे, ठीक है। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सारे पढ़े थे, जो सिलेबस में था वो तो पढ़ा ही था, लेकिन सारे पढ़े थे। और जिस तरह से, क्योंकि शेक्सपियर की बात जब हम करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये सारी कहानियां उन्होंने किस एज में लिखी। उस एज में जब कुछ भी नहीं था, तब पर्दों पर इन वन एक्ट प्लेस को कैसे दिखाया जाता था। अगर आप ये जानेंगे कि जब वो स्पिरिट्स को दिखाते थे और जब फेरीज को दिखाते थे तो किस तरह से वो स्टेज पे आते थे, नीचे से होल बनाया जाता था, वहां से धुआं निकलता था और उसमें से वो निकलते थे। जब पीछे से कोई आवाज देता था या गड़गड़ाने की, बादल गरजने की आवाज होती थी, उस इफेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता था। और चूंकि उस तरह का कोई भी स्पेशल इफेक्ट आजकल की तरह नहीं था, उस सब को क्रिएट करके जब शेक्सपियर का वन एक्ट प्लेस दिखाया जाता था, उनका चित्रण किया जाता था, तो लोगों को मतलब निशब्द हो जाते थे उसको देख करके। तो शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इज अनडाउटेडली, मतलब इसके लिए इनफ वर्ड्स नहीं है कि आप उसको डिफाइन कर सके। बहुत ही खूबसूरती से he has explained all the various complications of relationships। जहाँ एक तरफ वो रोमांस की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो फैंटेसी की बात करते हैं। जहाँ एक तरफ वो जेलसी की बात करते हैं, वहाँ उनके किरदार जो कि एंटी हीरो है, जो कि विलेन या वैम्प आजकल के शब्दों में, उनसे भी आपको जो है सिंपैथी हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने उसका चित्रण किया है, आप उनसे नफरत नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जब आप उनका कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो आपको लगेगा कि वैसा सर्कमस्टेंसेस था, ब्रूटस ने भले मारा था लेकिन ब्रूटस से आप नफरत नहीं कर पाएंगे। इस तरह से उन्होंने चित्रण किया है कि सर्कमस्टेंसेस आपको हीरो या एंटी हीरो बनाते हैं। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को और ऐसे सर्कमस्टेंसेस को इतने अच्छे से स्टोरीज में उन्होंने लिखा। एंड ऑल दिस क्रिएशंस, दे आर नॉट नॉवेल्स, दे आर नॉट स्टोरीज, दे आर वन एक्ट प्लेज। तो एक इनफैक्ट हम लोगों ने जो पहला नॉवल पढ़ा था मैकबेथ का, उस तरह से उन्होंने जिस तरह से लेडी मैकबेथ का चित्रण किया है, कहीं पे आपको उन पे बहुत गुस्सा भी आएगा और कहीं पे आपको जस्टिफाई भी कीजिएगा। तो इन सारे चीजों को इतने अच्छे से समराइज किया है, दैट्स रियली रिमार्केबल। आई थिंक सो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बुक्स रीडिंग का हैबिट डालिए, ये आपके नॉलेज को जिस तरह से एनरिच करेगा, बाकी कोई अलग तरीका नहीं है। बिकॉज दिस इज वन थिंग्स जो कि तय ब तय बनता है, ठीक है। इट्स नॉट मेड इन वन डे। कोई एक किताब उठा करके आप ये सारा नॉलेज नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हैबिट डालिए एंड मोबाइल छोड़िए, थोड़े किताबों के साथ अपना समय बिताइए। किताबों से अच्छे दोस्त कोई नहीं होते हैं। एक बार ये नशा अगर जो आपको हो जाएगा ना, तो आई थिंक सो सभी चीजों से आपको बेहतर लगेगा कि आप इसमें उसके अंदर घुस करके आप उन किरदारों को महसूस करके और उसके साथ अपने आप को रिलेट करके और तब एंजॉय कीजिएगा। सो रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स कि रीडिंग को अपना एक हैबिट बनाइए। नेक्स्ट टाइम जब कोई भी अपना रिज्यूम लिखे तो उसके हॉबी में रीडिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यूअर को एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कि अगर बच्चा रीडिंग में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है। दैट पर्सन इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस। सो मेक रीडिंग योर हैबिट। दैट्स ऑल आई हैव टू से। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय बुक दिवस पर, पुस्तक दिवस पर
इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह, IQC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गीता सिन्हा, हमारे सहयोगी डॉक्टर अंकिता कुमारी, हेड इकोनॉमिक्स, और इस सभागार में बैठे सभी शिक्षक मित्र, शिक्षकेतर कर्मी और प्यारे छात्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं, और रुचिका मैम ने बताया कि इस बार 2025 का जो हमारा थीम है, जो हर साल एक थीम पर विश्व पुस्तक दिवस मनाई जाती है, और इस बार का थीम है रीड योर वे, यानी कि अपने तरीके से पढ़ें। इस बात को समझने की जरूरत है कि हम क्या पढ़ें, किन चीजों को पढ़ें। तो इस किताब पढ़ने की जो महत्व है, पुस्तक को हमारे जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि अब आपको जो इच्छा हो, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए, वृद्धि करने के लिए, आप जो भी पढ़ना चाहें, आपके करियर से संबंधित हो, आपके करियर से संबंधित ना भी होकर यदि लगता है कि किताब मेरे जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है, आप स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। तो ये किताब की महत्व है। ये पुस्तक दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें ये है कि केवल किताबों को पढ़ने के लिए नहीं कि विद्यार्थी पर पढ़े, बल्कि इसके प्रकाशन को लेकर भी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लिखें। आप तब पढ़ पाएंगे जब लेखक लिखेंगे। तो ये समिति रूप से किताबों को लेकर लोगों में एक सामान्य जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मैं प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि इनके आने के बाद महाविद्यालय में कई तरह की गतिविधियां बढ़ी, और उसी का परिणाम है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैं चाहता हूँ कि बाकी डिपार्टमेंट भी करते हैं, लेकिन कॉमर्स डिपार्टमेंट बच्चों के बीच पढ़ाई और किताब की महत्व को लेकर अपने रूटीन में अलग से लाइब्रेरी का हम लोगों ने टाइम दिया। जब भी हमारे सेक्शन में 2 क्लास के बीच कहीं मुझे रिवीजन पीरियड होता है, तो हम लोगों ने अपने रूटीन को उसको ब्लैंक दे रखा है, बल्कि उसको लाइब्रेरी दिया है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज में आने के लिए और हमारे पुस्तकालय में किताबों को पढ़ने के लिए, कॉमर्स के अलावा, यानी कॉमर्स के अलावा बाकी किताबें यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा है कि आप यदि लाइब्रेरी जाते हो और वहाँ 1 घंटा पढ़ते हो और रोल नंबर यदि वहाँ के लाइब्रेरियन से सिग्नेचर करा के मुझे देंगे, तो मैं उस पर आपको अटेंडेंस दूंगा, ताकि हम विद्यार्थियों को ये बता सके कि केवल कोर्स की किताब जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी जीविका की किताब है, जिससे आप जीविकोपार्जन के काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप साहित्यिक बुक या कोई भी ऐसी किताब जो आपको मोटिवेट करता हो, यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ताउम्र उसकी फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। जैसा कि आप मुझे देखते हैं कि कई मामलों में अपने अधिकार पूर्वक अपनी बात को रख पाता हूँ। ये यूं ही नहीं आया, जैसे ही मुझे लगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मुझे ये मान के चलना है कि मेरे साथ भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को मैं कैसे पूरा करूं, तो मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जो शायद आज आपके सामने इतने आत्मविश्वास से बोलने के लिए, अपनी बात करने के लिए मुझे प्रेरणा देती है। मैं अपने अधिकारों को जान पाया। आप समझ सकते हैं कि हम सभी लोग शिक्षित साक्षर हैं, लेकिन हम पढ़ते कितना है। अब उस पढ़ाई को हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कितना पढ़ते हैं। तो मैं अपील करूंगा सारे विद्यार्थियों से, जो भी इस सभागार में बैठे हैं, आप प्रतिदिन जब भी आपके क्लास के बाद आपको लीजर पीरियड मिले, आप अपनी कोर्स की किताब पढ़िए। कोर्स की किताब नहीं पढ़ने का मन करे कि बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, बहुत बॉटनी जूलॉजी पढ़ लिया, आप लाइब्रेरी जाइए, वहाँ कई सारे साहित्य किताब हैं, आप उनको निकाल कर पढ़ें। मैं सर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मेरे बाबूजी अभी कुछ बीमार से चल रहे हैं और वो लगातार 10 दिन से लाइब्रेरी जाकर किताब पढ़ रहे हैं, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में, और उनको ये कॉलेज की लाइब्रेरी से किताब लेकर जाते हैं। मैंने कहा कि आप अपने आप को कैसे, मुझे अच्छा लगता है, भले कितना पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन एक 67-68 इयर्स के पर्सन जो है वो किताब लेकर जा रहे हैं, तो वो किताब को महत्व समझ रहे हैं कि अपने आप को अकेलेपन से, अपने आप को बाकी लोगों से, जब आपके पास बहुत सारे लोग ना हो, तो कैसे आप अपने आप एंगेज रह सकते हैं। तो
तो मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करूंगा, आप खुद किताब पढ़ें और आगे बढ़ें। कई सारी बातें होंगी हिंदी और अंग्रेजी विभाग के द्वारा। मुझे ये विशेष आमंत्रण था कि सर आप आए विद्यार्थियों के बीच कहें। और मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, बावजूद आपके साथ किताबों के बारे में रखने के लिए मुझे अवसर दिया गया। मैं दोनों विभाग के विभाग अध्यक्ष और शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ और मैं ये सारे बच्चों से अपील करता हूँ कि आप लोग लाइब्रेरी जाकर पढ़ें। और मैं शिक्षकों से भी गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं उनको आप एडिशनल अटेंडेंस दें ताकि विद्यार्थियों में किताबों के प्रति और रुचि को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारी है आपके जीवन में, उसको हमें जरूर याद रखना है। और अब मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह को हिंदी डिपार्टमेंट से यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि आए वो अपनी जो रिलेशनशिप है उनकी बुक्स के साथ उसको यहाँ पर साझा करें आप सबों के साथ। मैम प्लीज। सम्मानित सभी शिक्षक बंधु एवं यहाँ के उपस्थित विद्यार्थियों का मैं अभिवादन करती हूँ। आज विश्व पुस्तक दिवस है। पुस्तकों के महत्व पे सभी ने बात कर दी। मैं पुस्तकों के महत्व पे बात न करते हुए सफदर आजमी की कविता से अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी। सफदर आजमी ने कहा है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती, तुम्हारे पास रहना चाहती। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, पत्तियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें सही में किताबों का संसार इतना बड़ा है कि यहाँ हम सब समाहित हो जाते हैं। अगर हम किताबों में देखिए, किताबें अतीत से वर्तमान को या भविष्य को जोड़ने का एक पुल है। किताबें विचारों की जननी है। हम अगर इस विचारों की बात करें तो भारतेंदु से लेकर भगत सिंह को ले लें, गांधी को ले लें, सभी पे, इन सभी के आंदोलनों में, सभी के क्रांतिकारी विचारों में हम देखते हैं कहीं ना कहीं इन किताबों का प्रभाव है। हम गांधी के चैप्टर डिसओबीडियंस जो किताब है हेनरी डेविड का, उनसे प्रभावित उनका असहयोग आंदोलन को देखते हैं। उसके साथ हम श्रीमद् भागवत, बाइबल आदि किताबों का प्रभाव भी हम गांधी पे देखते हैं। विवेकानंद में भी हम किताबों के इस प्रभाव को देखते हैं। किताबें इस भारत की आजादी की पृष्ठभूमि में भी एक भूमिका के रूप में कार्य करती है। इन किताबों का समाज से जो संवाद है वो इतना गहरा है कि अगर जेल प्रवास के दौरान भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी, हमारे साहित्यकार, हमारे नेता रह गए तो उन्होंने उन किताबों के माध्यम से आम जनता से संवाद स्थापित किया। चाहे हम जवाहरलाल नेहरू को ले सकते हैं, जिन्होंने अपने बेटी के नाम पत्र लिखे पूरे भारतीय इतिहास को ही खंगाल दिया। चाहे हम माखनलाल चतुर्वेदी को ले लें, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान को ले लें, या फिर हम देखें तो आपातकाल के दौरान जो हमारे लेखक समुदाय रहे, भीष्म सहानी को ले सकते हैं, जिन्होंने किताबों के माध्यम से किस तरह से सत्ता से लोहा लिया, सत्ता के जो अनीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई। जहां तक मेरा सवाल है किताबों से, तो हम उस पीढ़ी से संबंधित है जिसको उसकी पिछली पीढ़ी के द्वारा ये किताबें, ये पत्र पत्रिकाएं हस्तांतरित हुई है। क्या अच्छी चीजें और इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू संजय प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, प्रभाष सर, रवानी सर, दुर्गा मैम, अंतरा मैम, हम सभी को बहुत शुक्रिया क्योंकि हम जब बात करते हैं बच्चे रील के जमाने में किताबें नहीं पढ़ते, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आगे आ रहे हैं, जो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं,
इतनी देर तक बैठ कर प्रिंसिपल सर के जाने के बाद भी बैठ करके हम लोगों को सुनना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। और सर यही प्रोत्साहन हमें चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे बच्चे हमने जिस दुनिया में प्रवेश किया है वहाँ पे हमने फेसबुक ही देखा है, और फेसबुक में अगर हम नहीं रहे तो ऐसा लेफ्ट आउट फील होने लगता है कि हम पिछड़ गए हैं दुनिया से। और यहाँ पे जितने ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हमारे पीछे जनरेशन के, वो भी उनका भी सबका अकाउंट फेसबुक में है, इंस्टाग्राम पे है, तो आज के जमाने में कोई सबसे अछूता नहीं रह सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इंटरेस्ट थोड़ा सा जग रहा है तो हमें प्रोत्साहन की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं आज का जो इस साल का जो थीम है कि अपने तरीके से पढ़ें, मैं इस पर 2 मिनट बस बोल करके चला जाऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये है कि आज तक मैं अपने तरीके से पढ़े, मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो है तुलनात्मक अध्ययन। आप कभी भी एक ही किताब को पढ़ेंगे, जैसे आप फेसबुक में देखते हैं, आप एक तरह की चीजें देख रहे हैं, फेसबुक आपको वही दिखाने लग जाता है। आप जो चीजें देख रहे हैं फेसबुक समझ जाता है आपके कैश फाइल वगैरह से कि ये इस चीज में इंटरेस्टेड है, इसको यही दिखाने लगता है। आप कॉम्युनल चीजें देखते हैं, आपको एक ही कम्युनिटी की चीजें, उस पर अत्याचार, यही सब आपको दिखाने लग जाता है, और हमारा माइंड बहुत सीमित और संकुचित हो जाता है, हम एक व्यापक स्तर की चीजों को नहीं देख पाते। किताबें भी जब हम पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि उनको भी किताबों को भी एक ही किताब, एक ही तरह की किताबें जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं उसको पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है, आपको तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि जब आप रामायण पढ़ेंगे ना, वाल्मीकि, मैंने पढ़ा है, सर ने कहा मैंने पुराण, बाइबल, रामायण सब पढ़ा है। जब आप वाल्मीकि का रामायण पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप तुलसीदास का रामायण पढ़ेंगे, तब आपको फर्क समझ में आएगा कि वाल्मीकि के रामायण के समय समाज किस तरह का था और तुलसीदास के रामायण के समय में समाज किस तरह का होता है। वाल्मीकि के रामायण में हमें बहुत तरह की जाति प्रथा, संपूर्ण उत्तरकांड में बहुत तरह की चीजें दिखती है, लेकिन क्योंकि समाज बदल चुका था, कबीर जैसे लोग उभर आए थे और उस समय जातिवाद पे इस तरह की चीजें नहीं लिखी जा सकती थी, इसीलिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में संपूर्ण का देखने नहीं मिलता है आपको। वही जिस तरह से वैदेही का अपहरण आप देखते हैं वाल्मीकि के कांड में, जिस तरह से उनको उठा करके ले जा रहे हैं राम, लक्ष्मण रेखा का जिक्र दोनों में नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि वहां उठा के ले जाया है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ में स्त्रियों के प्रति किस तरह से दृष्टि बदलती है। आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां पे सीता जी की छाया प्रति को स्थापित कर दिया गया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो ये आप समाज को परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वही जब आप तुलसीदास जी के रामायण को ही या वाल्मीकि के रामायण को ही आप बांग्ला रामायण में कीर्तिवास जी के रामायण से कंपेयर करेंगे तो आप उसमें सांस्कृतिक बदलाव देख सकते हैं। यहाँ पे वो लोग शिव जी की आराधना कर रहे हैं, यहाँ पे शक्ति की आराधना करते हैं, तो ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी देख सकते हैं। और इसी तरह से जब आप दो किताबों की, दो चीजों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, आप जब भारत की माइथोलॉजी और दुनिया की माइथोलॉजी को बगल बगल में रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि पूरी दुनिया उसी स्तर पे है। हम यहाँ पे इंद्र की, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ से कोसों दूर ग्रीक में कोई अलग पूजा नहीं हो रहा है, वहां भी थॉर था जो बिजली का देवता है। तो इसी तरह से प्राकृतिक पूजन भी शुरू हुआ था सब जगह में, और हम बेहतर तरीके से दुनिया को समझ पाएंगे जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जब आप धर्म की किताबों को और विज्ञान को भी बगल बगल में रख के देखेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ पाएंगे। जब आप देखेंगे कि जब एक तरह से आर्यन का जो माइग्रेशन थ्योरी के आर्यन वहां से इधर आ रहे हैं, ये चीजें टोनी जोसेफ और बहुत लोग इस पे लिखते हैं, तो उनका एक अलग रिसर्च होता है। लेकिन जब हम खुद वेदों को पढ़ते हैं, खासकर दिग्वेद को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे वेद में गंगा और यमुना का जिक्र तो 1 और 2 बार ही मिलता है, और बाकी सारे अफगानिस्तान की नदियों का जिक्र मिलता है। मतलब वो लोग वहां पे थे। उसके बाद के उपनिषदों में और बाकी ग्रंथों में हमें गंगा का जिक्र मिलता है, मतलब समय के साथ हम यहाँ आए, और जब दोनों को हम बदल बदल में रख रहे हैं तो दोनों सही साबित हो रहे हैं। इस तरह से जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, हमें दुनिया की बहुत अच्छी समझ मिलेगी, एक तरह का ज्ञान मिलेगी, एक तरह की चीजों से हम ग्रसित नहीं होंगे और बेहतर एक समझ बना सकेंगे। और जहाँ तक हम इसी तुलनात्मक अध्ययन में हम आज के शेक्सपियर डे की भी बात करें, शेक्सपियर की आप समय देखिए, कौन समय है भारत में मध्यकाल साहित्य में हम देखते हैं, यहाँ भी वही था। यहाँ पे उस समय तुलसीदास लिख रहे थे, सूरदास लिख रहे थे, कबीरदास लिख रहे थे, लेकिन इन तीनों ने बहुत कुछ लिखा है। तुलसीदास जी ने लोक मंगल पे बहुत बातें की कि मतलब समाज का कल्याण होना चाहिए। कबीरदास ने जाति प्रथा पे तो खूब प्रचार किया, मस्जिद मंदिर सब पे हमला किया। सूरदास ने ग्रामीण परिवेश को जगह दिया अपने साहित्य में, लेकिन महिलाओं पे कहा रह गई, महिलाओं पे ये सारे को पीछे ही रह गए, अपने समाज से आगे नहीं बढ़ पाए।
कबीरदास लिखते हैं जिन्होंने जाति धर्म पे इतना प्रहार किया, वो महिलाओं के लिखते हैं कि नाक के तो दो फन, नारी के फन बीस। तुलसीदास जी ढोल का वाला छोड़ दीजिए एक साइड में, आरण्य कांड में आपको इस तरह कहीं मिल जाएंगे यहाँ पर तुलसीदास 10 अवगुण गिना रहे हैं, जिसमें से एक गुण साहस भी है, मतलब औरत अगर साहस करे तो ये उनका अवगुण है। तो ढोल गवार वाला छोड़ दीजिए, वो बहस का मसला है, लेकिन और भी बहुत सारे यहाँ पे नारी के बारे में लिख रहे हैं। वही सूरदास भी सुख सागर में आप देखिएगा तो नारियों के बहुत इस तरह की चीजें लिख रही है। हम अगर शेक्सपियर में आते हैं तो हम उनको समाज से अलग बैठ कर भी नहीं देख सकते। अगर हम मैकबेथ भी देखेंगे तो लेडी मैकबेथ को देखिए आप, जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो वही पैट्रियार्कल सोच कि एडम ने पाप नहीं किया, ईव ने उनको सेब खाने के लिए दिया ताकि ईव पाप करे, वो पाप ईव के खाते में आए, है ना, हेवा के खाते में वो पाप आए और आदम बच जाए, क्योंकि वो पुरुष के सब चीज का निर्माण तो पुरुषों ने किया। तो यही सेम चीज हम मैकबेथ में भी देख रहे हैं। मैकबेथ गुनाह नहीं करता है, मैकबेथ को उकसाया जाता है। कौन उकसाता है? उसकी वाइफ। और यही सेम तरह का परिवर्तन हम बाकी जगह में भी देख रहे हैं। लेकिन यही है कि शेक्सपियर क्योंकि वहां पे औद्योगिक क्रांति का समय था, वहां पे चीजें बदल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे आ गया था, तो यहाँ पे हम उनके सोच को अपने समाज से थोड़ा ऊपर उठता हुआ देखते हैं कि कई ऐसे पात्र हैं जो सशक्त है वहां पे। जैसे कि जूलियस सीजर को देखिए, जूलियस सीजर नहीं मरता अगर वो अपनी पत्नी की बात मान लेता है, लेकिन जूलियस सीजर का मेल ईगो बीच में आ गया और वो मरने चला गया। तो इसी तरह से हम बहुत सारे टेम्पेस्ट में हम देख सकते हैं मेरेंडा के पात्र को कि मतलब जो है वो कितना सशक्त पात्र है, लेकिन वहां पे पेट्रियार्की को भी देख सकते हैं कि कैसे वो उनके प्रभाव में आ जा रही है। तो इसी तरह से जब हम इनके पात्र को देखेंगे तो ये ज्यादा सशक्त नजर आ रही है, बल्कि यहाँ पे जो साहित्य लिखा जा रहा था उसमें यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ये जूलियट को देखिए, यहाँ पे समाज से आगे मतलब उनके कैरेक्टर को देखा ही नहीं जा रहा, लेकिन वहां पे जूलियट विरोध कर रही है समाज से, मर जाएंगे लेकिन प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। ये कैरेक्टर है शेक्सपियर के इसमें। लेकिन यही हम कंपैरिजन देखते हैं कि भारत जो है हमारे विवेकानंद के सभागार में है। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि भारत पीछे क्यों रह गया? भारत पीछे इसलिए रह गया क्योंकि हम अपने ज्ञान को पूर्ण समझते रहे। हमने बाकी की दुनिया के ज्ञान विज्ञान के लिए खिड़कियां नहीं खोली, लेकिन बाकी दुनिया ने अपने ज्ञान विज्ञान के साथ में हमारे ज्ञान विज्ञान को भी अपनाया और आगे निकल गए। और इसीलिए अगर हमें अब आगे बढ़ना है तो हमें बाहर के ज्ञान विज्ञान के लिए खिड़कियां खोलनी पड़ेगी। हमने ये नहीं किया, इसीलिए शेक्सपियर के साहित्य में और भारत के उसी समय के साहित्य में हम ये अंतर देख रहे हैं। और शेक्सपियर जो लिख करके गए हैं वो चीज हम वो यथार्थ वर्णन जो महिलाओं का कर रहे हैं वो हम प्रेमचंद में यहाँ से 400-500 साल बाद देख रहे हैं। तो ये जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दोनों समाज को भी देखते हैं कि भारत समाज की सामंती व्यवस्था किस हद पे थी, और क्योंकि इंग्लिश सोसाइटी में वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद पूंजीवाद आ रहा था, तो हम यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति अलग देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स से हम इसको जोड़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें है ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं तो कई तरह की चीजें हम और भी देखते हैं जो जिससे हमारा अपना ही फायदा होता है। शेक्सपियर की सोनेट की बात अभी सबने की, शेक्सपियर का सोनेट से ही प्रभाव। शेक्सपियर का सोनेट में एक अलग बात है कैलियन सोनेट से कि कैलियन सोनेट में 8 पंक्तियों में 12 पंक्तियों में समस्या होता था, 6 पंक्तियों में 8 में समस्या होता था और 6 में उसका समाधान लिखते थे। शेक्सपियर ने उसको अलग किया है ना, वो पूरे के पूरे 8 जो 3 वर्ग है उसमें समस्या बताया और आखिरी के 2 पंक्तियों में उन्होंने समाधान दिया। इससे प्रभावित होकर के भारत के लेखकों ने सोनेट अपनाया, लोचन ने सोनेट अपनाया, निगारत ने सोनेट अपनाया, सोनेट लिखा। उसी तरह से जो हिंदी के दोहे हैं उसको उर्दू के लेखकों ने अपनाया। नीला फासली का दोहा देख लीजिए कि बच्चा बोला देख के मस्जिद आदि शाम, अल्लाह तेरे एक तो इतना बड़ा मकान। तो ये दोहा है लेकिन उर्दू में लिखा जा रहा है। और वहीं पे जब हम इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में गजलें लिखी जा रही है। अनिसुर रहमान सर की गजलें देखिए, इंग्लिश में कितना वो गजलें लिख रही हैं। तो ये जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दूसरे साहित्य से हम कई इनपुट भी लेते हैं, कई चीजें भी लेते हैं और वो हम उसको बड़ा बनाते हैं। अब हम मैंने जिन विधाओं की बात की आप देखिए कि वो अपनी विधाएं है भी, सोनेट इंग्लिश की विधा नहीं है, वो इटालियन विधा है साहित्य की। गजलें उर्दू की विधा नहीं है, वो फारसी की विधा है। और दोहा हिंदी की विधा नहीं है, वो संस्कृत की विधा है। लेकिन उन्होंने अपने जगह पर जितना प्रचलन नहीं हासिल किया वो दूसरे साहित्य में हासिल किया। तो हो सकता है कि कोई ऐसी विधाएं हैं जो कोई दूसरे जगह पर चलती हो, हम उसको अपना ले, पढ़ ले और उसको बड़ा कर दें। तो इसीलिए हमें तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। तो हमें मिल करके इस तरह से
विस्तार कर पाएंगे और एक अंतर्राष्ट्रीयवाद, मैं राष्ट्रवाद की बात नहीं करता हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीयवाद की स्थिति हम कायम कर पाएंगे जहाँ पे हम सबसे परिचित होंगे। इसीलिए पढ़ना लिखना तो सब ठीक है, सब पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि हमें प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद।